Good evening, everyone. So today we are going to solve the week 7 assignment of artificial intelligence, knowledge representation and reasoning. Okay. So these theory questions are there. These theory questions will be solving with week 6, because week 6 we have a lot of theory. So many questions are from week 6. So we will be solving whenever we will be solving the week 6. We will be uploading. We will be adding these questions also over there. For the time being, we will be adding all the practical questions, because practical questions are much more important at the point at this point of time. Okay, so we'll start with the practical questions. And practical questions, maximum 95% questions will be from practical portion. 95% will be from practical section. So we need to solve the practical questions first, and then we can go for the theory. The questions that we leave at present, we will be solving with the week 6. Do not worry about it. At present we are solving the week 7 practical questions. If we because the theory questions that we will be solving, the theory questions, those are based on week 6. So do not worry. Whenever we will be solving week 6, I will be solving the week 7 theory questions. So let's start with the question number 4. This is a prologue program, and we have to understand these things, and these are very easy. Let me tell you, these are very easy. Solutions are wrong. Somewhere the solutions are also wrong, I'm telling you, and I will give you a proof for it. Do not worry about it. Study the following problem using SWI prologue, then answer the questions. यहाँ पे क्या दिया हुआ? Likes Archana Apple. Likes Archana Apple. This, what does this mean? This means Archana likes apple. Similarly, Kalpana likes grapes, Ranjana likes olive, Sadhana likes peach, Bandana likes mango. Okay. Hope you understood this thing. What is the meaning of this part? Now we are going to understand this. Woman Archana. That means Archana is a woman. Archana is a woman. Similarly, Kalpana is a woman. Kalpana is a woman. Okay. Ranjana is a woman. So in this way, we understand the things. Now, these are the predicates. P of x, q x, rx. These are the predicates. Okay. R dashed. These are the predicates. Okay. Now let me tell you. This is symbol. This one. This is what? Negation. This is the symbol of negation. You can say negation. Negation means what? Suppose I'm writing I am good. If I use negation, then I am not good. That means it's the opposite. I am not good. Ram likes apple. Negation means Ram doesn't like apple. It's like that. Okay. So here it's given. This means negation. Means likes. So doesn't like mango. Means इसके means क्या है? X doesn't like mango. और क्या है? Woman X, and X is a woman. Okay. आप देखते हैं ये इसमें क्या बोल रहे हैं? X is a woman and X doesn't like mango. Hope इतना clear है. Okay. Now over here, this question. इसमें क्या होगा? इस predicate में X is a woman, X likes mangoes, mango. यहाँ पे क्या दिया? नॉट ऑपरेटर दिया हुआ, कट ऑपरेटर. ठीक है. कट ऑपरेटर लगा क्या किया इन्होंने? फॉल्स किया. मतलब ये जो भी ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू एंड इफ इज फॉल्स इज देयर, मीन्स द होल स्टेटमेंट is false. Hope you understood. What does it mean? The whole statement is false. ये false statement बाहर is written over here ना, means the whole statement is false. Simple. Understood? X is a woman. X likes mangoes. Then what? This is not. This is cut operator. Okay, leave the cut. Then over here, false is there. False means whatever. If this whole statement is true, Now then the false is there. That means the whole statement is false. Simple.
false लास्ट में मतलब the whole statement is false, simple. Now R true, मतलब R को R यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है ट्रू, बस इसका कोई मीनिंग नहीं, छोड़ दो उसको, इसे ऐसे दिया हुआ है. नाउ what are the questions? Let's go through the questions. Hope you understood till here. Which of the following queries will return true? P Archana, P Archana, P Archana. अब क्या हुआ? P अर्चना में क्या होंगे? P अर्चना यहाँ पे. Let me write it over here. P अर्चना. तो यहाँ पे क्या हो रहे? Does not like, अर्चना doesn't like mango. And अर्चना is a woman. Archana is a woman. P doesn't like, Archana doesn't like mango and Archana is a woman. यही तो है ये. Archana is a woman. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं. These are the given statements. These are given. Archana likes apple. Archana likes apple. यहाँ पे क्या दिया हुआ? Archana likes apple and Archana is a woman. Archana doesn't like mango. तो Archana male, Archana doesn't like mango. Doesn't like mango. Archana likes apple. It's given over here. Archana likes apple. मैंगो सिर्फ वंदना को पसंद है, अर्चना को नहीं पसंद है. दिस मीन्स क्या? दिस इज ट्रू, माने पी अर्चना इज करेक्ट. देखे, पी अर्चना है. क्यू अर्चना भी ट्रू होंगे, क्योंकि क्यू अर्चना में क्या है? अर्चना इज ए वुमन एंड डजंट लाइक मैंगो. दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो क्यू अर्चना इज ऑल्सो ट्रू. नाउ आर अर्चना, एक्स इज ए वुमन, माने अर्चना इज ए वुमन. R Archana is there na? Okay. R Archana. Let me write this thing, this part. Archana is a woman, likes X mango. Likes माने क्या होता है? अर्चना likes mango. उसके बाद क्या है? फॉल्स. तो फॉल्स क्या करेगा? ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या करेगा? फॉल्स कर देगा. अर्चना लाइक्स मैंगो को, मतलब क्या होगा? फॉल्स कर दे रहा, मतलब क्या? इट मीन्स अर्चना डजंट लाइक मैंगो. अंडरस्टूड? स्टेटमेंट अर्चना इज ए वुमन, अर्चना डजंट लाइक मैंगो, मतलब क्या हुआ? उसको फॉल्स कर दिया इन्होंने. उसका फॉल्स कर दिया मतलब क्या हो गया? अर्चना डजंट लाइक मैंगो, अर्चना इज ए वुमन, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो पी अर्चना, क्यू अर्चना, आर अर्चना. होप आप लोगों को क्लियर हो गए. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन अगेन. हाँ, अब यू कैन से दैट इज, मैंने क्या बोला? द होल स्टेटमेंट. होल स्टेटमेंट मीन्स क्या? ये होल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. द preceding statement is false. Preceding statement you can write like this. क्योंकि क्या होगा? ये जब false है, false इस पे amplify होगा. ये जब understood, this will be implied over here. This false will be implied over here. Doesn't like. अब यदि पूरी में हो जाएगा, पूरे में, तो X is not a woman also. ठीक है, तो it's not possible. ये false इस पे अप्लाई होगा इस चीज में. Next, which of the following queries will return all the women who do not like mango? All the women who do not like mango. इसमें तीनों होगा, PX, QX, RX. You can see. I have already explained. X doesn't like mango and X is a woman. X is a woman and X doesn't like woman. X is a woman, X likes mango और false दिया हुआ. मतलब क्या? ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट. What you have to do? You do write a mail to the concerned team and get your marks get reviewed for this question. All the options are correct. All the options are correct. PX, QX, RS, all the options are correct.
Now this is a very important question. SQL prolog programming. Now what is given? Study the following program using SWA prolog, then answer the following. Identify the types of cuts in the following. Cuts दो type के होते हैं. First let me tell you. एक होता है green cut और एक होता है red cut. Red cut is dangerous. It can, you can say, prune valid solutions. उसको भी prune कर सकता है. It prunes invalid solution. It can prune. मतलब क्या रेड कट क्या है? It's a big cut, you can say. It's a big cut. It cuts the whole branch. यहाँ पे क्या ग्रीन कट में क्या होगा? होल ब्रांच को नहीं कट करेंगे. ठीक है, तो विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस क्वेश्चन. एंड द प्रेडिकेट foo3 एंड bar3 टेक्स टू इनपुट. प्रेडिकेट ये देखो foo3, दिस इज foo3 एंड दिस इज bar3. Okay, abhi foo3, what is this 3? You might be thinking, what is this 3? 3 means 3 arguments. 1, 2, 3. There are 3 arguments. Here also do 3 arguments. Can you see? Here also 3 arguments. 1, 2, 3. Bar 3. Matlab 3 arguments are there. N space, this one is a list, empty list. This one is the empty list. Usko empty list bolte hain. Okay, here also 0. एम्प्टी लिस्ट और ये एक स्लैश दिया हुआ एन एम्प्टी लिस्ट बार, उसके बाद एन एक्स एस एक्स वाई एस, तो ऐसे करके दिया हुआ है. अंडरस्टूड? दीज आर द एम्प्टी लिस्ट. अब बात करते हैं ये जो ग्रीन कट और रेड कट, ये जो कैन यू सी दिस कट, दिस वन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन यदि फॉल्स होगा तभी कट होगा. दैट मीन्स क्या? दिस इज ग्रीन कट. यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट कट है, पहले ही कट कर दे रहा. मतलब क्या? होल सब ट्री इज कट. इसको क्या बोलते हैं? इसको रेड कट बोलते हैं. एंड हियर नो कट, क्यों? कट का सिंबल ही नहीं. दिस इज द सिंबल ऑफ कट. ओके, सिमिलरली हियर देखो कंडीशन है, कंडीशन के बाद कट, तो दिस वन इज ग्रीन कट. दिस वन इज कोई कंडीशन देने के पहले ही कट कर दे रहे. दैट मीन्स क्या? दिस इज ए रेड कट. And here, this is also green cut. This is green cut because there is a condition and then there is a cut. So this is green cut. और कंडीशन फॉल्स होगा तभी कट होगा. कंडीशन जब तक ट्रू है देयर इज नो कट. अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या? पहले ही कट कर दे रहा था. दैट इज रेड कट. एंड हियर नो कट. होप इतना क्लियर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है? ये एन लेस देन दिस वन इज लेस देन इक्वल टू 0 है. अब कौन सा प्रोग्राम है? दिस आर नॉट प्रोग्राम्स, दिस आर सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोलॉग प्रोग्राम्स. सिंपल. They are not going to ask you, they won't ask you to write a program. Do not worry about it. Now n less than equal to 0, n less than equal to 0 जब तक स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम. और जैसे ये फॉल्स हो जाएगा देयर विल बी कट. अंडरस्टूड? यहाँ पर पहली कट, ये तो समझ में आ गया. अब व्हाट टाइप ऑफ कट्स आर यूज्ड इन foo3 प्रेडिकेट. foo3 कौन सी? ये वाली. व्हाट टाइप ऑफ कट्स? एक रेड, ग्रीन कट, रेड कट दोनों यूज हुए. बोथ रेड कट्स एंड ग्रीन कट. वो भी तक क्लियर है. यहाँ पे भी आंसर में कुछ गड़बड़ है. What type of cuts are used in bar3 predicate? bar3 में ग्रीन कट ओनली कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर दोनों है, रेड कट, ग्रीन कट दोनों है, तो दिस विल बी रेड एंड ग्रीन बोथ. तो what you have to do? Just you have to mail to them that and ask for the marks, okay? But because it has both the cuts, you can give them this explanation also, and you can gain the marks over there. Now, which of the predicates in question 6 can be defined without using cuts? Without using cut कौन सी है? There is no cut. एक bar3 में ये वाला है और एक foo3 में. दोनों में क्या है? Without using cut वाला भी एक ऑप्शन है. ओके, तो both foo3 and bar3. होप इतना क्लियर है. Now we will go for OPS5 language. Okay, this is very important. ठीक है, you have to understand the concept. And this is very easy. I am telling you, it's very easy. You have to understand. Okay, we'll be solving 2 questions. One we'll be solving here and one we'll be solving in practice assignment. So do not worry about it.
पी इनिट रूल, नैट नम, नैट मतलब नेचुरल नंबर, num x less than 2. Now this one is the variable number, okay, and this one is x is less than 2. Make row a x b x. a का वैल्यू भी x का जो वैल्यू होगा वो a में आएगा, b का जो b में भी वो एक x का वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड। p वर्क रूल 2, इसमें क्या है, a का वैल्यू x, b का वैल्यू y, ठीक है। कैसे वो बाद में देखते हैं, मेक रो ये सारे देखते हैं। अब नेचुरल नंबर 4 है, नेचुरल नंबर 4 दिया हुआ, फर्स्ट 101, आई एम यूजिंग 101 रूल, ओके। नाम इक्वल टू 4, नाम इक्वल टू 4, दैट मीन्स इसकी मीनिंग है नाम इक्वल टू 4। अब वी गो पी इनिट रूल में, यहाँ पे जा रहा हूँ, 4 लेस देन 2, x 4 लेस देन 2, तो दिस इज फॉल्स। तो क्या होगा, ये वाला नहीं चलेंगे, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। अब पी वर्क रूल इस पे जाएंगे, ये तो हुए नहीं, ये फेल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, नैट नम 4 दे दिया, तो ये वैल्यू तो चलेगा नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू x है, बी का वैल्यू y है, या इट्स नॉट, तो ये वाला हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल, ओके। तो 102 रूल चलेंगे। वाई नाम 4 है, एक ही नंबर है, यहाँ पे क्या 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर मांग रहे हैं, x और y दोनों, दे आर आस्किंग फॉर 2 नंबर्स, ओके, यू कैन सी। एंड 102 रूल हैज़ 2 नंबर्स, 102, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 इज गिवन, ओके। अब क्या हुआ, a इक्वल टू इट्स ट्रू, a इक्वल टू b, अब क्या हुआ, 1 लेस देन 4, एंड b इक्वल टू y, b इक्वल टू 1 हो गया। 1 लेस देन 4, हाँ ट्रू है, तो ये तो ट्रू है, दिस वन इज ट्रू। तो क्या पड़ेगा, मेक a इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब ये x है और ये y है, x प्लस वाई, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड b इक्वल टू x, b इक्वल टू x, b का वैल्यू कितना है, 1, सिंपल। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, ये हो गए। अब फिर जाएंगे यहाँ पे, देखें, यू विल गो ओवर हियर, ओके। नाउ विल सी क्या होगा, 2 लेस देन 4, ट्रू, एंड b इक्वल टू y, b इक्वल टू y, b इक्वल टू y, b इक्वल टू क्या होगा, y मतलब क्या होगा, b इक्वल टू 1 ही होंगे, b इक्वल टू 1, तो क्या होगा, मेक x प्लस वाई, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, क्या किसकी, a इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, एंड b इक्वल टू x, b इक्वल टू x, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू इज 2, दिस वन इज x का वैल्यू 2, b इक्वल टू 2। होप इतना क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, 3, अब 3 लेस देन 4, दिस इज ट्रू, एंड b इक्वल टू क्या है, 2। नाउ 3 प्लस 2, मेक a इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ओके, एंड b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू x, x का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू x, यहाँ पे दिया हुआ देखो, b इक्वल टू x, और x का वैल्यू क्या है, 3, दिस वन इज x, b का वैल्यू 3, ठीक है। नाउ फिर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 5 लेस देन 4, ये क्या हो गया, फॉल्स, अब नहीं चलेंगे, अंडरस्टूड। तो होप इतना क्लियर है, एक्चुअली जुकाम लगे मुझे, दैट्स द प्रॉब्लम, इसलिए आप लोगों को शायद डिस्टर्बेंस होंगे, सॉरी फॉर दैट। तो इतना तो क्लियर हो गया व्हाट आई वाज डूइंग। तो आप लोग फिर रिपीट करें, इस लेक्चर को फिर रिपीट करें, आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ लेट मस गो, हाउ मेनी टाइम्स डिड द सिस्टम फायर रूल्स बिफोर इट halted, how many times did the system fire rules before it halted, they are asking this, how many times, can you understand? फर्स्ट टाइम फायर होने के बाद कितने बार, हाँ एक बार फायर हुआ, लेट वी राइट इट, दिस वन इज फर्स्ट टाइम फायर, एंड 1 लेस देन 4, दिस इज सेकंड टाइम फायर, एंड दिस इज थर्ड टाइम फायर। 3 बार फायर हुआ बिफोर इट हॉल्टेड, उसके बाद तो हॉल्ट हो गया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ये किया मैंने, फर्स्ट टाइम फायर हुआ। उसके बाद एक a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू 2, और एक a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3,
तो 3 बार फायर हुआ, तो 3 times it has fired. After the system halts, how many working memory elements are present in the working memory? After the system halts, तो हम कैसे करेंगे? After the system halts, तो what we can do? एक 101 यहाँ पे लिखो, nat num 4. कितने वर्किंग मेमोरी एलिमेंट्स है? 102 क्या है? रो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1, 103. रो ए का वैल्यू क्या हुआ? 1b1 हो गया, ये 1b1. उसके बाद क्या हो गया? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, 104. रो ये ऐड कर रहे थे, a3 और b2. ओके, 105. रो 3 + 2 5, a5 b3. यही तो कर रहे थे हम लोग, a5 b3. देखे करेक्ट किया क्या नहीं? a5 b3. तो ये इतनी मीन्स क्या होता है? हाउ मेनी वर्किंग मेमोरी एलिमेंट्स? देयर आर 5 वर्किंग मेमोरी एलिमेंट्स. nat num 4, row a1 b1, row a2 b1, row a3 b2, row a5 b3. okay, all will be added. okay, so there are 5. hope इतना clear है. The value of x in the most recent working memory element, most recent. x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू क्या है? 5 है, तो x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5. अब we will go to retinate. This is a very important topic, retinate. So we'll go with the retinate now. In a retinate, repeated firings of the rules on the same working memory is prevented by the repeated, बार बार नहीं होना चाहिए, तो by the production system. How by the production system? That we will understand with the help of this example, with the help of this question you can say. Now let us understand the retinate. Then we can come to this question again, this theory. Given village retinate for a loan processing system. Okay, loan processing system when a working memory with timestamps. It's given working memory with these are the timestamps, 201, 202, 203. These are the timestamps. Okay, with timestamps represented by sequence numbers. Okay, the label A1, A2 refers to alpha nodes. These are the alpha nodes. Okay, and B1, B2 are the beta nodes, and R1, R2 are the rule nodes. Everything is explained over here. Okay, this is given. Now क्या हुआ? 201, 202, 203, 204, 205. These working memories are given. Okay, we have to understand each and every rule. Okay, that's the thing. तो 201 में क्या होंगे, 202 में क्या होंगे, 203 में क्या होंगे, that we have to understand. Otherwise, if you do not understand this thing, so we cannot solve the question. Simple thing. We have to understand this thing. Now 201. Let me take one more sheet. 201. Let us see 201 में क्या हो रहा है. एप्लीकेंट नेम ब्रायन, जेंडर मेल, एज 30. एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट मतलब क्या? क्लास देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, टॉपिको है, ये एप्लीकेंट है. वी कैन गो ओवर हियर. एप्लीकेंट नेम क्या है? एप्लीकेंट नेम ब्रायन. एप्लीकेंट नेम ब्रायन कोई भी हो सकता है. उसका क्या? जेंडर मेल. यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली बोला हुआ जेंडर फीमेल, तो वी विल गो विद दिस पार्ट. होप आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला हुआ जेंडर इक्वल टू फीमेल, तो ये मेल हो सकता है. ठीक है, तो एप्लीकेंट नेम जेंडर मेल, और क्या दिया? एज 30. एज 30. अब एज तो कहीं नहीं दिख रहा. वी कैन नॉट सी एज एनीवेयर. ओके, तो हमें पकड़ना पड़ेगा तो एज 30 हो सकते हैं किस इस ब्राइन के. ठीक है, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ब्राइन. ठीक है, एज के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तो हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा यूजिंग आवर ब्रेन. तो एज 30 हो क्या हो गया? तो ये ब्रायन कहाँ जा सकता है? एक इधर गया और एक इधर गया, तो मतलब क्या हुआ? ये कौन सा रूल है? ये रूल 1 है, ये रूल 2 है. तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे? रूल 1
कॉमा रूल 2, दोनों लिख सकते हैं। ओके, नाउ 202 एप्लीकेंट नेम फियोना, जेंडर फीमेल, एप्लीकेंट नेम फियोना, यही वाला एप्लीकेंट नेम फियोना, जेंडर फीमेल, और क्या दिए, एज 25, जेंडर फीमेल, एज 25। तो इधर भी जा रहे और इधर भी जा रहे, मतलब क्या होगा, R3, R4 दोनों लिख दो। होप इतना क्लियर है। 203 203 क्या, एप्लीकेंट नेम विजय माला, जेंडर मेल, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट इज दिस वन, नेम विजय माला, जेंडर मेल, मेल तो इधर गया, जेंडर मेल, एज 50। तो ये किधर जा रहा है, ये दोनों में जा रहा है, रूल 1 रूल 2, R1 R2। होप इतना क्लियर है। 204 मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिए, प्लीज पॉज द लेक्चर एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन यू ओन, दिस थिंग द वे आई एम सॉल्विंग। 204 में क्या, एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द क्लास नेम, दीज आर ऑल द क्लास नेम्स। ओके, एम्प्लॉयमेंट, क्लास इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, क्लास इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट ये है। ओके, क्लास इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, पर्सन ब्रायन स्टेटस एम्प्लॉयड, पर्सन ब्रायन स्टेटस अनएम्प्लॉयड, पर्सन ब्रायन स्टेटस अनएम्प्लॉयड। तो ये कहाँ जा रहा है, दिस वन इज गोइंग फॉर रूल 2, रूल 2। 205 205 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट, पर्सन फियोना स्टेटस एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ये हो गया, पर्सन फियोना, ठीक है, और स्टेटस एम्प्लॉयड, स्टेटस क्या दिया फियोना, स्टेटस सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टेटस सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कितना इनकम है क्या है वो कोई बात नहीं कर रहे, तो दिस वन इज व्हाट, रूल 3, तो राइट R3। लेट मी रब दिस पार्ट, दिस थिंग्स। Okay, now which one, 206 is what, employment, name Vijay Mala, status government employed, name Vijay Mala, employment status government employed, person this, status government employed, over here। मतलब क्या होगा, रूल कौन से हो गए, रूल 1 R1। ओके, 207 ऐसे करें, 208 209 210 211 212। ओके, अब क्या हुआ, 207 का क्या होगा, सिमिलरली 207 का वैल्यू क्या होगा, 207 देखते हैं। 207 टोबैको, दिस क्लास नेम इज टोबैको, पर्सन ब्रायन यूज हैवी, टोबैको पर्सन दिस यूज हैवी, इधर गया यूज हैवी, मतलब किधर गया, रूल 2 R2, राइट R2। उसके बाद 208 टोबैको पर्सन फियोना यूज नन, टोबैको पर्सन फियोना यूज नन, नन वाला किधर गए, इधर गए, रूल 1 में। 209 टोबैको पर्सन विजय माला यूज नन, टोबैको पर्सन विजय माला यूज नन, ये भी रूल 1 में। 210 में क्या है, एजुकेशन, पर्सन ब्रायन एजुकेशन, आप एजुकेशन में चलेगा इधर, पर्सन ब्रायन स्टेटस हाई स्कूल, स्टेटस हाई स्कूल, तो ये किधर जा रहे, रूल 2। 211
एजुकेशन पर्सन फियोना स्टेटस ग्रेजुएट, एजुकेशन पर्सन फियोना स्टेटस ग्रेजुएट, ये किधर जा रहे हैं? रूल 4 में, तो राइट रूल 4। ओके, देन 212 क्या है? अल्कोहल पर्सन ब्राइन, अल्कोहल में चलते हैं। अल्कोहल दिया हुआ, अल्कोहल, अच्छा, क्लास नेम इज अल्कोहल है। एक मिनट देखते तो, अल्कोहल तो कोई क्लास नेम ही नहीं है, देयर इज नो क्लास नेम अल्कोहल। ओके, देयर इज नो क्लास नेम अल्कोहल, तो फिर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। ओके, होप इतना क्लियर है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो सबको समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू? रूल 1 में कौन कौन सा वर्किंग मेमोरी यूज हुए? लेट अस राइट लाइक दिस। रूल 1 में क्या हुआ? 201 यूज हुए। इसके बाद रूल 1 203, जस्ट राइट इट लाइक दिस। देन 206, देन 208, 209। ओके, रूल 2 में कौन कौन से यूज हुए? 201, रूल 2 में 203, 204, 203, 204, 204, रूल 2 क्या? 207 और 210। रूल 3 में कौन कौन से यूज हुए? 202, 205, 205 इज दिस वन। एंड रूल 3 में और कौन सा है? और नहीं है। रूल 4 में कौन कौन सा है? रूल 4 में 211 है और 202, 202, 211, 202, 211। इतना तो क्लियर है, ये सारा मैंने लिख लिया। कितने रूल्स थे अभी एक बार देख लिया हम लोग फिगर में? रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, इतना तो हमने कर लिया। अब दिस मच यू हैव टू डू व्हेन एवर द क्वेश्चन कम्स फॉर रिटन इट, दिस मच यू हैव टू सॉल्व। इतना आपको सॉल्व करके रखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। Now, which of the following cases, when an application is submitted, will trigger a rule in Retinet? A self-employed graduate without smoking habits. A self-employed graduate without smoking habits. अब कैसे देखेंगे? Self-employed graduate without smoking habits. ये कैसे? एक मिनट हो गया। A self-employed graduate without smoking habits. So how to solve this one? देखते हैं। A self-employed graduate without smoking, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयमेंट वाला तो पहले लेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्लास इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, क्लास इक्वल टू एम्प्लॉयड, and he is a self-employed graduate is this without smoking habits. Okay, without smoking habits, that can be done because क्या यहाँ पे स्मोकिंग का कुछ बात नहीं कर रहे। हेवी होगा तो दे आर टॉकिंग ना, नन एंड हेवी दे आर टॉकिंग, और कहीं कुछ भी नहीं लिख रहा मतलब ही डजंट स्मोक, सिंपल। तो दिस कैन बी, तो वी टेक इट लाइक दिस। ओके, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ? क्लास इक्वल टू टॉपिक ऑफ पर्सन एक्स यूज इक्वल टू नन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कमिंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Oh, I'm sorry. I did a mistake.
ए सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स, मैंने कुछ और ही सोच रहा था. ए सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट, लेट मी सी, ए सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट, सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट इट्स गिवन एंड विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स. विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स का तो कोई यहाँ पे देर इज नो इंडिकेशन अबाउट एनीथिंग. वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स और विथ स्मोकिंग हैबिट्स वी कैन नॉट से एनीथिंग. So this cannot be possible. Understood? A self-employed without smoking habits. He is smoking or he is not smoking. Nothing is explicitly defined in the figure. Okay? So we cannot say anything regarding this. An unemployed heavy smoker. An unemployed heavy smoker. देखते हैं. Let me rub these things. An unemployed heavy smoker. An unemployed ये है. This one unemployed इधर आ गया. और use equal to heavy smoker. ये टॉपिक से आ रहा है ना, पर्सन एक्स use heavy. So an unemployed heavy smoker. This is true. An unemployed heavy smoker. An unemployed heavy smoker. ओके. एन अनएम्प्लॉयड हेवी स्मोकर, एक बार फिर देख लें. एन अनएम्प्लॉयड और यहाँ पे यूज इक्वल टू हेवी, तो दिस कैन बी देयर. तो ये एक मिस्टेक है यहाँ पे. एन अनएम्प्लॉयड हेवी स्मोकर ये होंगे. ए फीमेल ग्रेजुएट इन ए टोबैको कंपनी. ए फीमेल ग्रेजुएट वर्किंग इन ए टोबैको कंपनी. ए फीमेल ग्रेजुएट ये है, जेंडर फीमेल, वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी. कुछ भी तो नहीं है. टोबैको कंपनी में जॉब कर रहे, वर्किंग हियर, नथिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. ओके, इस फिगर में कुछ भी नहीं है. तो फिर क्या होगा? ए फीमेल ग्रेजुएट वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी नहीं है. ए सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट. सेल्फ एम्प्लॉयड तो इधर है, सेल्फ एम्प्लॉयड इधर है, और फीमेल इधर है, और ग्रेजुएट. और फीमेल कैन बी हियर ऑल्सो. सेल्फ एम्प्लॉयड और फीमेल कैन बी हियर ऑल्सो. ठीक है, तो कैन यू सी दिस थिंग? सेल्फ एम्प्लॉयड और फीमेल ये हो गया. आर ग्रेजुएट, फीमेल एंड ग्रेजुएट ऑल आर लिंक्ड. मतलब ए सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट ऑल आर लिंक्ड टुगेदर. सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट ऑल आर लिंक्ड टुगेदर. अंडरस्टूड? इन रूल 3 एंड रूल 4. ओके, ऑल आर लिंक्ड टुगेदर. दैट मीन्स क्या? इट कैन बी एक्सेस ना. A self-employed female graduate. An unemployed high school educated chain smoker. An unemployed. Let me rub this thing. An unemployed high school educated chain smoker. High school. An unemployed हाई स्कूल इधर है, और अनएम्प्लॉयड हो गया इधर, हाई स्कूल भी आ गया, और इधर हेवी दिया हुआ चेन स्मोकर. तो तीनों आ गया ना रूल 2 में. दैट मीन्स क्या? दिस इज ट्रू. मतलब कितने रूल्स ट्रू हो रहे? ए ग्रेजुएट एम्प्लॉय विथ स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है. ए फीमेल ग्रेजुएट क्या दिया? ए फीमेल ग्रेजुएट वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी. एन अनएडुकेटेड हेवी स्मोकर ये हो सकता है अनएम्प्लॉयड. ठीक है. ए फीमेल ग्रेजुएट वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी, ये तो क्या कहीं तो नहीं लिखा फीमेल ग्रेजुएट एंड इट इज वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी. लेट मी सी. ए फीमेल एंड ही इज ए ग्रेजुएट. ओके, ही इज ए ग्रेजुएट एंड ही इज वर्किंग इन अ टोबैको कंपनी. नोवेयर इट्स एक्सप्लिसिटली डिफाइंड. ए सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट ये तो ठीक है. और क्या होता है? अनएम्प्लॉयड ये भी ठीक है. ठीक है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स एंड अनएम्प्लॉयड. तो मीन्स दिस इज अ मिस्टेक. ओके, या यू कैन राइट दिस थिंग्स. ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चंस. यू कैन ऑल्सो सी. हाँ, इन द रेटिना फाइंड द लोकेशंस वेयर वर्किंग मेमोरी 202 रिसाइड्स. 202. अब 202 देखते क्या है? 202 ये है R3 R4 ना. 202 क्या है? नेम फियोना, जेंडर फीमेल, एज 25. एप्लीकेंट नेम फियोना, जेंडर फीमेल,
applicant name Fiona, gender female, age 25. तो जेंडर फीमेल, तो A15, एप्लीकेंट नेम देखिए, एप्लीकेंट नेम फ्योना, एप्लीकेंट नेम फ्योना, नेम फ्योना, दिस कैन बी दिस कैन बी दिस, उसके बाद जेंडर फीमेल बोल दिया इन्होंने, तो A15, तो द वैल्यू इज गोइंग टू बोथ द साइड्स, हियर एंड हियर बोथ, ओके, एंड फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू दिस, मीन्स क्या है, लास्ट जो नोड है अल्फा की, दैट इज कंसिडर, तो A7 इज द लास्ट नोड ओवर हियर एंड A15 इज द लास्ट नोड ओवर हियर। होप आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एप्लीकेंट नेम फ्योना, एप्लीकेंट नेम फ्योना जब करेंगे तो फ्योना इधर भी आएगा, फ्योना इधर भी आएंगे, इतना तो क्लियर है। नाउ जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये अंदर चला गया, जेंडर इक्वल टू फीमेल, जेंडर इक्वल टू फीमेल मतलब ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पे अल्फा नोड क्या है A15 और यहाँ पे अल्फा नोड क्या है A7, क्योंकि यहाँ पे तो फ्योना क्या है, तो A7, A15, A7, A15, A7, A15। In the first round, which of the following rule data will be present in the conflict set? कौन कौन सा रूल्स will be present in the conflict set? तो R1 का वैल्यू कितना है, 201, 203, 206, 208, 209, ओके, 203, 206, 209, हाँ, तो देखो ये R1 में है 203, 206, 209 और 201 भी तो R1 में है ना, 201 is also there in R1, I think. Let me see. Applicant name Fiona, gender male. Gender male. Applicant name 201. Name Brian, gender male. Name Brian, gender male. हाँ, ये 201 में तो ये भी है, 202 में भी है, 201, 202। तो ये दोनों में फॉल कर रहा है, दोनों रूल में, R1 और R2 दोनों में। अंडरस्टूड? तो 201, 203, 206, 208, 209 इन्होंने क्या क्या दिया देखिए, 203, 206, 209, 203, 206, देख, लेट मी चेक, आप लोग भी चेक करें खुद, 203, 206, 209, ठीक है, 208 और 208 ने 1 नहीं दिया। अब देखते हैं, अब देखो इसकी मिस्टेक क्या है, दैट आई एम शोइंग यू, ओके, लेट मी शो यू द मिस्टेक। 208 में क्या है, टोबैको पर्सन फ्योना यूज नन, ओके, यहाँ पे टोबैको पर्सन विजयमाला यूज नन, ठीक है, इसको इन्होंने ले लिया R1 में, इनको क्यों नहीं लिया, व्हाट इज इशू ओवर हियर, ये भी तो R1 में आएगा। तो देयर आर मिस्टेक्स इन द सॉल्यूशंस आल्सो, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड व्हेन देयर विल बी एग्जामिनेशन में देयर विल बी नो मिस्टेक, क्वेश्चन भी छोटे होंगे and they will make clear that means there should not be any mistakes, zero mistakes, do not worry about it. Assignment में there might be mistakes, do not worry about it, just go through my solutions, just understand the concept, okay, that's all. तो क्या क्या हुआ, R1 2036, 203, 206, 209, R2 में क्या है, 201, 204, 207, 210, 210, 204, 207, 210, 204, 207, 210। R3 में क्या है, 202, 205, 205, 202, 205, 202, 205, देखो यहाँ पे ठीक है। R4 में क्या है, R4 में 202, 211, 202, 211, there are mistakes, do not worry about it, ठीक है, but the solutions are absolutely correct. वो भी इतना क्लियर है। उसके बाद इफ स्पेसिफिसिटी इज यूज्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट सेट, स्पेसिफिसिटी मतलब टॉप वाले, ओके, टॉप, ओके, इज यूज्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट सेट, स्पेसिफिसिटी यूज्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट सेट रेजोल्यूशन स्टेट, देन व्हिच रूल विल फायर। स्पेसिफिसिटी की कहाँ से होते हैं, टॉप से होते हैं स्पेसिफिसिटी, ओके, और लास्ट में होता है, ये तो नहीं है, एंड ये होता है रिसेंसी मतलब रिसेंट, ओके। स्पेसिफिसिटी में जाने के पहले रिसेंसी में चलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिसिटी में भी थोड़ा इशू है इनके।
देखिए recency is there. If recency is used as a confidence tester, which rule will fire? तो 204 लास्ट वाले कौन सा है? लास्ट वाला देखो तो, लास्ट वाला कौन सा है? रूल 4. तो रूल 4 में क्या है? 202 211. देखो दिस इज द आंसर. 202 211. इतना क्लियर है? आप रिसेंसी का बात कर रहे हैं. रिसेंसी में दोनों हो सकते हैं, रूल 1 रूल 2 दोनों हो सकते हैं. इन्होंने क्या किया? रूल 2 को ले लिया स्पेसिफिकली. क्यों रूल 1 रूल 2 दोनों हो सकते हैं? क्योंकि टॉप में कौन है? टॉप में कौन है? रूल 1 और रूल 2 दोनों है. इन्होंने एब्रप्टली रूल 2 को ले लिया. आप रूल 1 को भी ले सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे जब मीन्स व्हेन देयर विल बी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा. रूल 1 रूल 2 ऐसे करके देंगे ही नहीं. इसमें रूल 1 होगा और लास्ट में रूल 5 रूल 6 जो भी होगा, इन दैट वे. नहीं तो आप रूल 1 रूल 2 में कौन सा लोग, आप यू पीपल विल गेट कंफ्यूज. तो डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, हियर दे हैव टेकन रूल 2. तो रूल 2 में क्या है? 201 203 204 207 210. देखते 201 204 207 210. दिस थिंग दे हैव नॉट टेकन रूल 1. रूल 1 भी ले सकते हैं वो. ठीक है, बट दे हैव नॉट टेकन, दे हैव टेकन दिस वन. होप इतना क्लियर हो गया. रिसेंसी भी क्लियर है. Now we'll go with the practice assignment. Practice assignment of these questions. We have to solve this because this might come in the paper also. Okay. So let's go with this one.